ओके ठीक है। हमने न्यूमोथोरैक्स तक हमने बात कर ली थी ना। वी टॉक टिल डिस्कस्ड टिल न्यूमोथोरैक्स एंड आई थिंक आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दीज टर्म्स, द प्लूरल रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स ना, प्लूरल रेसेस वगैरह। ठीक है। एंड हमने अलग अलग सेगमेंट्स की बात करी थी। एक्चुअली मैंने ये स्लाइड भी ओपन करके रखी हुई है बिकॉज वी आर सपोज टू स्टार्ट विद बायोमैकेनिक्स, बट लेट्स सी इफ वी आर एबल टू डू दैट बिकॉज लास्ट क्लास में हम ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो लेट्स कवर दिस थिंग एंड देन वील जंप ओवर टू बायोमैकेनिक्स. Okay, so this is the last thing that we are supposed to talk about in anatomy. उसके बाद and then we will start with biomechanics. Okay. So okay, हमें 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 बात करनी थी thoracic duct की. Okay. तो thoracic duct simply it means first of all सर आपका वॉइस वॉइस फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। अब 1 सेकंड के लिए वापस रिकनेक्ट कर लूंगी। okay, ये प्रॉब्लम बाकी सबके साथ में भी है. यस सर। Okay. Sir, your voice is breaking, sir. Okay, just give me a second. Okay, is it better now? यस सर। Okay. ओके ठीक है. सबको विजिबल है स्लाइड? स्लाइड विजिबल है. ओके ठीक है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट thoracic duct. thoracic duct से पहले लेट्स टॉक अबाउट lymphatic fluid. So we see na, we see that we have got this fluid that we also call it as tissue fluid, or we can say the lymphatic fluid, जो कि हमारा पूरी बॉडी में it travels and then we see eventually उसका drainage होता है. If we talk about the drainage of the lymphatic fluid, we are supposed to talk about two different ducts. तो we can see we've got two different ducts जहाँ पे eventually हमारा जो lymphatic fluid होता है it drains eventually into that particular region. तो अगर हम दो डक्ट की बात करते हैं बॉडी में, first of all we have got this that is called as the lymphatic duct and another one that is called as the thoracic duct. Simply just remember this thing, that the upper right quadrant, it means the right upper limb. Okay, you can say the upper right part of the thorax as well as the right portion right half of the head. So you can say upper right quadrant of the body, इसमें जितना भी lymphatic fluid होता है it eventually drains into a duct that is called as lymphatic duct. And the rest of the body का जो lymphatic fluid है it drains into thoracic duct. It means thoracic duct becomes really important ना. So just remember this thing, that right upper quadrant of the body it is drained into the lymphatic duct. And we won't talk about the lymphatic duct as such, but we are going to talk about the, you can say, the course of the thoracic duct and where eventually it drains. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे eventually कहाँ पे drain करता है वो. ठीक है. ओके, तो अभी के टाइम पे वी मस्ट रिमेंबर दैट एक्सेप्ट the upper right quadrant of the body, the rest of the lymphatic fluid of the body is being drained into the thoracic duct. Okay. अब अगर अगर thoracic देखो यहाँ पे कोर्स सेम चीज़ लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द thoracic duct, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू दिस पर्टिकुलर यू कैन से वेन. ठीक है, या इन ब्लड वेसल में इसका ड्रेनेज हो रहा है. तो वी आर कंसर्न विद दिस स्ट्रक्चर ओनली एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द thoracic duct. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर 3 or 4 पॉइंट्स अबाउट thoracic duct. सबसे पहले इसका ऑरिजिन कहाँ पे है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट किन किन स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसके बाद फिर ये कहाँ कहाँ इसका जाता है, इवेंचुअली ड्रेन कहाँ पे करता है. ये 3-4 चीज़ें, जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स बिकॉज they might ask you this thing about the thoracic duct. Okay, first of all just remember the lowermost part of the thoracic duct that is called as the cisterna chyli. ठीक है, cisterna chyli, CHYLI. ठीक है, cisterna chyli, and that starts at the level of L1 L2 you can say. ठीक है, L1 L2 level पे cisterna chyli is at the level of L1 L2, and eventually we see it goes upwards and pierces through the, you can say, the aortic opening of the diaphragm. Of course we can see in the diaphragm, this is the diaphragm. ठीक है, and this is the descending aorta. Of course the descending aorta होगा.
है ना. हमने देखा था हार्ट में वी हैव गॉट द असेंडिंग एओर्टा, देन वी हैव गॉट आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन वी हैव गॉट द डिसेंडिंग एओर्टा. एंड हमने एक स्ट्रक्चर की बात करी थी जो विच मार्क्स द एंड ऑफ असेंडिंग Maneuvers tunnel. manubrious tunnel joint ना, marks the end of है ना ascending, starting and end of arch of aorta and then beginning of the descending aorta ना. Okay, तो here we can see कि through the aortic opening in the diaphragm we can see it passes through the diaphragm and that is at the level of T12. So it means cisterna chyli at the level of L1 L2 then pierces through the diaphragm at the level of T12. Then we can see it goes upwards between, on the right side we can see we have got this particular vein. The name of this particular vein is called as azygous vein. It is azygous vein. And on the left side of course we have got the descending aorta. ठीक है. And we can see up, जैसे upward जा रहा है it changes its direction. We can say thoracic duct crosses from it should be right to left. यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना, ये इमेज में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. Of course this is the right side and this is the left side. So just remember it crosses from right to left, okay, not from left to right. यहाँ पे गलत लिखा है, just from right to left. Of course we can see on the right side we have got the azygous vein, on the left side of the thoracic duct we have got the descending aorta, and we can see it goes from right to left and then goes along the left side of the esophagus. Eventually it drains into this particular region, which we can say is you can say the tributaries of the left internal jugular vein and the left subclavian vein. इसको यहाँ पे देख लेते हैं. Here we can see कि the thoracic duct it goes upwards and eventually it drains into this particular junction between left internal jugular vein and the left subclavian vein. Eventually दोनों का मतलब the internal jugular and the subclavian they combine and make this particular vein that is called as the left brachiocephalic vein. Along with the right brachiocephalic vein they make the superior vena cava. Can anyone tell me कि superior vena cava कहाँ पे drain करता होगा हार्ट के कौन से चैम्बर में? First of all on the right side of the Right atrium. हाँ exactly on the right है ना, in the right atrium we can see we have got the superior vena cava and we have got the inferior vena cava है ना. तो superior vena cava we can say mostly drains the blood or deoxygenated blood from the upper part of the body and the inferior vena cava from the inferior part of the body, and we can see eventually it drains into right atrium and उसके बाद कहाँ जाता होगा कोई बताएगा? उसके बाद it goes into right ventricle and eventually it Ventricle. है ना right ventricle की तरफ and then it goes towards the lungs है ना through pulmonary artery से जाता है ना pulmonary artery से जा रहा है but it is a deoxygenated blood. अच्छा कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है? एक तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस पढ़ते हैं ना मतलब आर्टरी एंड वेन का, that we see that in pulmonary artery पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? इट इज डीऑक्सीजनेटेड है ना, इवन दो इट इज एन आर्टरी. हाँ ओके, तो ऐसा कोई आप एग्जांपल बता सकते हो एक और जहाँ पे आर्टरी होती है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड? एग्जैक्टली हाँ, अम्बलाइकल आर्टरी एंड अम्बलाइकल वेन. तो वहाँ पे भी हम देखते हैं, वहाँ पे भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. आर्टरी में अम्बलाइकल आर्टरी में इट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इन अम्बलाइकल वेन इट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि ऑल दो स्ट्रक्चर्स विच टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट, यू कैन से टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उनको हम वी कॉल दो स्ट्रक्चर्स एज आर्टरी है ना. एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स विच आर टेकिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट तो वी कॉल इट एज वेन. तो अगर हम अम्बलाइकल वेन एंड आर्टरी की बात कर रहे हैं, अम्बलाइकस इज पार्ट ऑफ फीटस नॉट पार्ट ऑफ द मदर ना. तो अगर वो फीटस का पार्ट है तो इवेंचुअली वी सी, अगर हम अम्बलाइकल वेन की बात करें तो वी कैन सी कि इट इज़ टेकिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द फीटस. तो इवेंचुअली वी हैव टू मतलब उस तरह से हम इसको नाम देते हैं, ठीक है, अम्बलाइकल वेन एंड अम्बलाइकल आर्टरी. तो आर्टरी जो है वो ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है एंड वेन जो है वो टुवर्ड्स हार्ट लेके जा रही है. नाउ वी कैन सी कि अम्बलाइकस इज पार्ट ऑफ द फीटस, तो इवेंचुअली हम वहाँ पे वेन एंड आर्टरी अपोजिट नाम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन का नाम हम उल्टा करके दे रहे हैं, ठीक है. इसलिए ये मतलब बेसिकली ये रीज़न होता है. तो okay, so just remember this thing that at the junction of the left internal jugular and the left subclavian vein, eventually it makes up the superior vena cava and that is basically the passageway. इसके अलावा I don't think इतना ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की ज़रूरत है, but simply just remember the levels, सिस्टर्ना काइलाई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ कौन से स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट है, कहाँ पे क्रॉस ओवर करा है. लेवल ऑफ T5 इट क्रॉसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and eventually it drains here. ठीक है, just remember these 3-4 things and the level
and eventually you can say out of four, the three quadrants of the body, the thoracic duct, it drains, है ना? So just remember that thing. I think that is sufficient when it comes to the thoracic duct. And if we talk about the upper right quadrant, it is the lymphatic duct that we are supposed to talk about. Okay, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, सर थोड़ा धीरे समझाओ ना। थोड़ा स्लो चलूँ मैं? चलो ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ. अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं करी. मैंने सिंपली सिर्फ इस डायग्राम को समझाया है, सिर्फ इस डायग्राम की मैंने बात करी. एंड डायग्राम में हमने देखा कि बस 3-4 लेवल की हमने बात करी. एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा सिस्टर्ना कायलाई, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बीच में हमारा थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट है, क्रॉस ओवर कौन से लेवल पे कर रहा है, T5 पे, एंड इवेंचुअली कहाँ पे जाके ये ड्रेन कर रहा है. बस मैंने 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी. अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ स्टार्ट किया ही नहीं अभी. ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर है. कोई डाउट अगर कुछ चीज़ है तो जस्ट लेट मी नो. कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही जस्ट लेट मी नो. ठीक है, okay, and of course we can say that if there is any injury जहाँ पे let's say the cisterna chyli, if it gets affected, in that case we can call this condition as chylothorax. Just remember this thing, chylothorax. Thoracic duct may get torn as a result of fracture or something in the thoracic region, and because of that condition is called as chylothorax. Okay, just simple, if the thoracic duct gets torn or gets affected. ठीक है, ओके, that was simply the thoracic duct. Simple, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बस just simple facts and I think that's all. Okay, now let's start with the abdominal anatomy. Specifically we are supposed to talk about the muscles of the abdominal region. Okay, so if we are talking about the muscles of the abdominal region, so here we can see कि first of all they have got a, you can say, range of different functions that we can talk about when it comes to abdominal muscles. जैसे हमने pulmonary muscles की बात करी थी. pulmonary muscles में we saw कि मतलब वहाँ पे वो क्या कर रहा था, मतलब वहाँ पे नॉट द pulmonary, thoracic muscles की जब मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि of course ventilation में help कर रहा है and all those things. Likewise, if we talk about the abdominal muscles, so yeah, here we are supposed to talk about certain things like, first of all, here we can see coughing, vomiting, defecation, है ना? So in all these processes, it is the, you can say, the contraction of the abdominal muscles mainly, because of which the abdominal pressure increases and which eventually leads to these processes, you can say, the coughing, vomiting and defecation, है ना? Apart from that, we can see that okay, in case of forceful expiration also we can see there are other muscles which are in contraction, and then we can talk about the abdominal muscles. Protection of the abdominal viscera, of course we can see mainly it is the transverse abdominis. We will talk about this particular muscle, but we can see that it is the transverse abdominis. इसका contraction अगर होता है, it prevents the internal viscera, ना, एक protection provide कर रहा है to the internal structures, है ना, against any kind of external force. And apart from that, we can see that keep the abdominal viscera in abdominal cavity and assist the viscera in maintaining the anatomical position against gravity. Okay, we can see that more or less we can talk about certain functions, and mainly we can see that the contraction of the abdominal muscles, it can help to increase the intra-abdominal pressure. Okay, so now let's start with certain muscles. इसको हमने we can divide the abdominal muscles into two different types. First of all, we can talk about the vertical muscles and the flat muscles. ठीक है, तो flat muscles की अगर हम बात कर रहे हैं, flat muscles में we can talk about first of all the external and the internal obliques. इसको मैं एक ही बारी में पहले overview आपको देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक एक की बात करते हैं. First of all, the external and the internal obliques. ठीक है, right now we are talking about the flat muscles. The transverse abdominis, this is one of the most, you can say, important muscle when it comes to maintaining the posture of a person, or let's say अगर हम बैक एक की बात करते हैं, बैक एक में we can say it is one of the most important muscle. अगर इसकी इस particular muscle के let's say weakness है, तो in that case very easily we can say that there is a high possibility of lower cross syndrome, है ना. हमने upper cross syndrome डिस्कस किया था, हमने अपर क्रॉस सिंड्रोम डिस्कस किया था. कौन कौन सी मसल्स है ना वीकनेस में होती है, एंड विच आर द मसल्स विच आर इन टाइटनेस, एंड हमने उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ना, इट फॉल्स, है ना, एंटीरियर टू द थोरेसिक वर्टिबल कॉलम,
and because of that there is a high tendency of the thoracic kyphosis to go into increased kyphotic curvature, and because of that so in order to maintain, you can say, just a second, so in order to maintain normal eyesight, we can say that side that is parallel to the ground, in that case we bring the cervical spine into increase the lordosis, है ना. तो उसलिए हम कहते हैं कि सब ऑक्सीपिटल मसल्स जो होता है दे गो इनटू टाइटनेस एंड द नेक फ्लेक्सर्स दे गो इनटू वीकनेस. Likewise, we can talk about lower cross syndrome. तो lower cross syndrome में mostly what we see that कोई बताएगा कौन कौन सा पेयर होता है मसल का which goes into weakness and which pair goes into tightness in case of lower cross syndrome. Hamstrings हाँ, goes into that weakness. It is weakness. हाँ है ना. The hamstrings and abdominal muscles. हाँ, it means it is the gluteal and the hamstrings, and उसके क्रॉस में कौन सा हो गया, abdominals, है ना. These are the muscles which go into weakness, है ना. and उसका opposite हम कह सकते हैं hip flexors, and along with that lower back, है ना, lower back extensors which goes into tightness. ठीक है. इसकी बात हम करते हैं, इससे पहले let's talk about हाउ दिस मसल्स फंक्शन. इसके ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिकली ना यहाँ पे एग्जांपल हम लेके चलेंगे पहले क्यूएल का. क्यूएल के एग्जांपल में हम समझेंगे कि ये मसल पर्टिकुलरली किस टाइप से काम करती है, उसके बाद वी विल डिस्कस. चलो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं पहले. लेट्स से मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्यूएल का नॉर्मली जो फंक्शन है, क्यूएल का फंक्शन जो है दैट वी कैन से दैट लेट्स से इफ द, अगर हम पहले अटैचमेंट की बात करें तो हम देख रहे हैं जैसे क्वाड्रिटस लंबोरम जो है इट इज़ अटैच्ड ऑन द इलियक विंग, पोस्टीरियर मसल है, and then on to the transverse processes of L1 to L5, and then we can say that it gets attached to the inferior surface of 12th rib, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूँ तो आई कैन से दैट आइदर lateral flexion of this particular region in case अगर pelvis stable है, और वी कैन से अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी है थोरैक्स पे, तो इन दैट केस इट लीड्स टू पेल्विक, यू कैन से पेल्विस गोज इनटू हाइक, है ना, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मसल. तो लेट्स से अगर ये इफ यू वांट अ पर्सन टू गेट हिज दिस पर्टिकुलर क्यूएल गेट्स, मतलब स्ट्रेंथ है ना, अगर हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग हमें करानी, लेट्स से लेफ्ट साइड क्यूएल की हमें स्ट्रेंथनिंग करानी है इस पर्सन की, तो इस केस में हम मतलब कौन सा एक्शन कराना चाहेंगे. मतलब आप आई जस्ट वांट कि आप अपने से कोई जस्ट कम अप विद सम आइडिया. लेट्स से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लैटरल ट्रंक लीन करने में हमारा क्यूएल जो है उसका फंक्शन जो है दैट इज़ लैटरल ट्रंक लीन. तो अगर मुझे लेफ्ट साइड क्यूएल का मुझे स्ट्रेंथनिंग करनी है तो स्टैंडिंग पोजीशन में व्हाट शुड बी द एक्सरसाइज दैट आई शुड प्रेस्क्राइब टू द पर्सन. कौन सा एक्शन, मतलब in the standing position should it be the left side lateral trunk lean exercise or the right side trunk lean exercise. I hope सबको क्वेश्चन समझ आया. Right side. राइट साइड. राइट साइड, वाई राइट साइड, वाई नॉट लेफ्ट, बिकॉज हम तो लेफ्ट क्यूएल की बात कर रहे हैं. आप सही बोल रहे हो, सही आंसर है. राइट साइड की तरफ ही हम करेंगे, बट वाई इट इज. हाँ हाँ, अब जस्ट आई थिंक अगेन दिस थिंग इज जस्ट I think again this thing is you can say common sense only, but ये person जो है, this person is in a standing position, है ना, and we have got right QL and the left QL. Okay, now what I am saying that in standing position I am supposed to go into right side lateral trunk lean. This thing you can also try it by yourself. एक बार आप दोनों हाथ को राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से फिंगर्स को जस्ट प्लेस इट ऑन, यू कैन से द एब्डोमिनल रीजन. एक बार आप राइट साइड की तरफ ट्रंक लीन करो एंड जस्ट सी कि कौन सी साइड पे आपका जो मसल है उसका एक्टिवेशन हो रहा है. इज इट द लेफ्ट साइड और इज इट द राइट साइड? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड है ना. इट मीन्स इन केस ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन when I'm going into right side trunk lean, in that case left side muscles are going into activation. Now if I ask you, is it the eccentric contraction or the concentric contraction of the left side muscles? Eccentric contraction. It is the eccentric contraction and not the concentric contraction. Why eccentric? Because here we can see हाँ, it is the हाँ, because muscle की lengthening हो रही है ना. पर ये पर्सन जो है, पर्सन राइट साइड ट्रंक लीन में जा रहा है ना.
जब भी just remember this thing that whenever we perform a certain action that is towards the gravity, in that case first of all the muscles on the opposite side are going to get activated, and apart from that there is going to be eccentric contraction. Let's say अब मैं सेम एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूँ, लेट्स से सर एक्टिवेटेड मतलब क्या होगा? एक्टिवेट मतलब कि मतलब मुझे समझ मसल एक्टिवेशन होगा, मसल कौन सा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। सर जैसे हाँ। अगर राइट साइड अगर फ्लेक्स मतलब अगर बैंड हो रहा है तो राइट साइड का जाएगा ना? देखो राइट साइड, Contraction. हाँ देखो राइट क्यूएल लेफ्ट क्यूएल हमारे पास प्रेजेंट है। अगर पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है उसके बाद पर्सन राइट साइड ट्रंक लीन कर रहा है, इन दैट केस लेफ्ट क्यूएल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज हमारा जो एक्शन, जो रेंज ऑफ मोशन है दैट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी। टुवर्ड्स ग्रेविटी जब भी एक्शन हो रहा है उस केस में एक तो अपोजिट साइड मसल काम करेगी, एंड दूसरा मसल, उस मसल का इसेंट्रिक। देखो जब जस्ट सिंपली इसको ऐसे याद रखो, जब मैं मतलब अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, मैं राइट साइड की तरफ ट्रंक लीन कर रहा हूँ, तो राइट साइड ट्रंक लीन करने के टाइम पे ऑफ कोर्स इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मेरे को नॉर्मली राइट साइड की तरफ लेकर आ ही रही है। तो अभी मुझे आई डोंट नीड एनी मसल कॉन्ट्रैक्शन कि मैं राइट साइड की तरफ ट्रंक लीन करूँ। आई जस्ट नीड अ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मेरे को एक्सेसिवली राइट साइड की तरफ फॉल करने से रोके। तो उस केस में लेफ्ट साइड की जो मसल है, लेफ्ट साइड क्यूएल जो है वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, एंड इट इज ट्राइंग टू प्रिवेंट कि मैं राइट साइड की तरफ गिर ना जाऊं। सो एज टू प्रिवेंट इट, लेफ्ट साइड की जो क्यूएल है इट इज गोइंग इन टू लेंथनिंग बट इट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है आपको? ओके ओके ठीक है। लाइकवाइज नॉर्मली हम देख सकते हैं एब्डोमिनल्स का फंक्शन क्या होता है। एब्डोमिनल का फंक्शन होता है जैसे हम क्रंचेस करते हैं, क्रंचेस में हम कहते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। लेकिन क्या स्टैंडिंग पोजीशन में हम फॉरवर्ड बेंड करें तो क्या एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? आई डोंट थिंक। स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हमें लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ़ यू वांट कि हमें एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में लाना है स्टैंडिंग पोजीशन में, जस्ट टेल मी कि बैक मसल का एक्टिवेशन हो रहा हाँ है ना? किसका? ऐसा कुछ उसमें बैक मसल का एक्टिवेशन हो रहा हाँ है एग्जैक्टली ऐसा कुछ? एग्जैक्टली हाँ, मतलब उस केस में हमें बैक मसल्स, लोअर बैक मसल्स एक्टिवेट होंगी। या फिर आप जस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में बैकवर्ड लीन करके देखो, आप जस्ट देखो कि सडनली जो एब्डोमिनल मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगी, एकदम से टाइट हो जाएगी। एंड तो है ना, तो इट मीन्स कि जब हम टुवर्ड्स ग्रेविटी कोई भी एक्शन हो रहा है, एंड यहाँ से कंसेप्ट हमारा आता है ना इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। तो अब आई थिंक अब हमें समझ आया कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली मसल के टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट होने की ही है। लेकिन इट इज़ द फोर्स, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम बैकवर्ड लीन कर रहे हैं तो उस केस में बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन से इट इज़ मोर देन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल्स जब हम बैकवर्ड ट्रंक लीन कर रहे हैं। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि मसल एब्डोमिनल जो है, इवन दो इट इज़ ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है that is more than the force being generated by the abdominals, and because of that the muscle eventually goes into lengthening. Even though it is trying to contract, still it goes into lengthening. I think अब सबको समझ आया चीज़ है ना। एंड सेम चीज़ हम है ना, तो Yes, सेम sir. ठीक है। तो आगे से अगर कोई भी अगर आपको बोलता है कि क्यूएल की अगर स्ट्रेंथनिंग करनी है तो जस्ट कीप इन माइंड, या कोई भी मसल की अगर स्ट्रेंथनिंग करनी है जस्ट कीप इन माइंड कि ये ब्लंडर हमें नहीं करना, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग अलॉट। तो ठीक है, तो इट मीन्स कि वेदर द पर्सन इज इन स्टैंडिंग पोजीशन और इन सिटिंग पोजीशन, और इसको भी अगर हम छोड़ दें वेदर द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म टुवर्ड्स ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू डिसाइड कि विच साइड मसल्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड, अकॉर्डिंगली वी कैन फिगर आउट है ना कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, तो आपने इसको ब्लंडर क्यों बोला? मतलब ब्लंडर मैंने इसलिए बोला कि आप बिकॉज मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बट अगर आप नॉर्मली इफ यू आस्क समवन आउट देयर दैट QL का फंक्शन क्या है, एंड दे विल ऑब्वियसली दे विल टेल यू दैट इट इज लैटरल ट्रंक लीन, एंड इफ यू आस्क देम कि इन द स्टैंडिंग पोजीशन की एक बार QL का फंक्शन करके दिखाना, तो दे विल फॉर राइट QL दे विल से इट इज राइट ट्रंक लीन, बट नाउ वी नो दैट इट इज लेफ्ट साइड QL जो कि एक्चुअली एक्टिवेट हो रही है ना, नॉट द राइट साइड QL। बट normally I think I've seen a lot of people doing right side trunk lean and saying that it is the right QL that gets activated, because of course QL का फंक्शन trunk lean होता है, लेकिन अब हमें समझ रहा है कि वो फंक्शन ग्रेविटी की तरफ है, इसलिए इट इज़ द अपोजिट साइड QL जो कि एक्चुअली एक्टिवेट होनी चाहिए। तो इन केस अगर मुझे इसेंट्रिक, अगर मुझे है ना स्ट्रेंथनिंग करनी है लेट्स से QL की, एंड द पर्सन इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन, तो इन दैट केस इट, अगर मुझे लेफ्ट QL को स्ट्रेंथन करना है इन दैट केस द पर्सन शुड लीन टुवर्ड्स राइट साइड ना। पर्सन के हैंड में आप वेट
डंबल जो है वो आप होल्ड करवा दो, एंड उसके बाद पर्सन राइट साइड की तरफ जब ट्रंक लीन करेगा, इन दैट केस लेफ्ट क्यूएल जो है वो हमारी स्ट्रेंथन हो रही है, ना कि राइट क्यूएल। ठीक है, ओके ओके। सर, पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो फिर आप क्या बोलोगे? सेम चीज़ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार ना हाँ देखो, सबसे पहले जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कैमरा ऑन कर लूँ, जस्ट एक ओके ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, अगर अगर हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो एल्बो आप कह रहे हो बाइसेप, तो बाइसेप में ऑफकोर्स सेम चीज़ होगी ना। अगर मैंने डंबल लिफ्ट किया एंड डंबल में लिफ्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, इन दैट केस देयर इज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप, है ना। एंड इफ द लोड इज मोर देन द फोर्स बीइंग जनरेटेड बाय द बाइसेप, इन दैट केस इवन दो बाइसेप इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल जो एक्शन है दैट इज हैपनिंग, दैट इज अकरिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो इन दैट केस देयर इज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यही चीज़ है। एंड तो अगर अगर नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं, तो उस केस में ऑफ कोर्स इट इज द बाइसेप दैट गेट्स एक्टिवेटेड। लेकिन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप, तो उस केस में आई थिंक सबने सबने देखा होगा, हम ओवरहेड एल्बो एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं। तो नाउ आई कैन से ना, तो अब मेरा जो एक्शन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है एंड एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है, इट मींस ट्राइसेप एक्टिवेट हो रही है। तो नाउ आई कैन से कि मेरा जो ट्राइसेप का कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, है ना। लेकिन इस पोजीशन में मेरा बाइसेप का क्या कहते हैं वो हो रहा है, मतलब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ आया। नो सर, नहीं आया? नहीं सर, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले में कंफ्यूजन, अगर वो वाला सही, वो हाँ वाला तो आ गया मुझे समझ में। हाँ जैसे हम बाइसेप्स के लिए ऐसे हाथ मोड़ रहे जैसे आपने बताया, हाँ 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 हाँ, तो सर ओके। हम तो ये इसी के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें तो एक्टिवेशन आपने बोला और फिर कॉन्ट्रैक्शन अपना दूसरी साइड हो रहा था जब हम नहीं 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 नहीं, लेटरल अरे फ्लेक्शन की नहीं, बात मैं कर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, कोई भी एक्शन अगर अगर अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी कोई भी एक्शन है दैट इज कंसेंट्रिक, एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी कोई भी एक्शन है दैट इज इसेंट्रिक। तो अगर अगर लोड ज़्यादा है वहाँ पे, अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी एक्शन हो रहा है, तो उस केस में बाइसेप का कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? इसेंट्रिक। आई जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन से केसेस में होता है एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन से केसेस में होता है। तो जैसे जैसे हम जो भी एक्शन जहाँ पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, लेट्स से अगर मैं राइट साइड ट्रंक लीन कर रहा हूँ तो लेफ्ट क्यूएल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। अगर मैं बैकवर्ड ट्रंक लीन करता हूँ तो एब्डोमिनल का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। राइट साइड ट्रंक लीन में स्टैंडिंग पोजीशन में लेफ्ट क्यूएल जो है वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाती है। लाइकवाइज मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर ये एक्शन हो रहा है टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो उस केस में मेरी बाइसेप का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप कर पा रहा हूँ चीज़। आपको आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, अगर आप एक बार मेरे को समझाओगे कि नो आपको नो डाउट नो क्या सर, ऑल क्लियर। है। नहीं मतलब कोई कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो जस्ट लेट मी नो, तो ताकि मैं उसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ आया। मतलब आई जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस थिंग क्लियर कि इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमारा कौन से एंड सेम चीज़ देखो, अगर 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 हम एब्डोमिनल मसल्स की बात करते हैं एंड इफ आई से दैट द पर्सन इज इन साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन में पर्सन है, एंड अब मैं पर्सन को बोलता हूँ कि लेट्स से पर्सन अपने राइट साइड के ऊपर साइड लाइन में है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो ऊपर की साइड है, राइट साइड जो है वो नीचे की साइड है। आई होप सबको समझ आया। मतलब राइट साइड लैटरल नहीं, मतलब साइड लाइन पोजीशन में। ठीक है, तो उस केस में मैं इफ आई आस्क द पर्सन टू डू लैटरल ट्रंक लीन लेफ्ट साइड की तरफ, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, अब मेरा लेफ्ट साइड का जो क्यूएल होगा उसका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, यही होगा। मतलब यस है ना, मैं सर। राइट साइड राइट ट्रंक लीन में राइट क्या कहते हैं, लैटरल क्या क्या टर्म है, साइड लाइन पोजीशन में हूँ, साइड लाइन पोजीशन में, हाँ है ना, साइड लाइन पोजीशन में हूँ, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डू ट्रंक लीन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उस केस में मेरा लेफ्ट क्यूएल जो है दैट विल एक्टिवेट एंड इट विल गो इनटू कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज एक्शन जो है दैट इज अकरिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो उस केस में आई विल से एब्डोमिनल ऑफ द सेम साइड मसल्स विल गेट। आई थिंक इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आप एक्शन करके देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन से साइड की मसल एक्टिवेट हो रही है ना।
एंड इसके चलते हमारा, इसकी वजह से ना हम ओके, हम अभी आगे आगे जब लंबर स्पाइन की बात करेंगे उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लंबर पेल्विक मोशन, तो वहाँ पे वी विल सी दिस थिंग कि जो पेल्विस है, पेल्विस और लंबर स्पाइन का जो एक्शन है वो फिक्स नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, लेट्स से पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है and हम फॉरवर्ड ट्रंक लीन करते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि उस टाइम पे लंबर स्पाइन में क्या हो रहा होगा? फॉरवर्ड ट्रंक लीन में लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन हो रहा होगा कि एक्सटेंशन हो रहा होगा? आई थिंक ये सिंपल है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंड जब हम कर रहे हैं फ्लेक्शन हो रहा होगा ना। Flexion. हाँ है, लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन हो रहा होगा। एंड उस टाइम पे पेल्विस का क्या होता है? आई थिंक पेल्विस एंटीरियर टिल्ट में जाता है, ठीक है Yes, sir. है ना? ओके, लेकिन लेकिन इफ आई आस्क यू कि पर्सन अगर अगर लाइंग पोजीशन में है, सुपाइन लाइंग पोजीशन में, एंड लेट्स से क्रंचेस वाले मतलब एक्सरसाइज आपको करने को बोलूँ मैं, उस केस में लंबर स्पाइन अगेन फ्लेक्शन में जा रही है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द पेल्विस इट गोज इनटू पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है, सुपाइन लाइंग पोजीशन में, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि वी कैन से कि लंबर स्पाइन की मूवमेंट एंड पेल्विस की मूवमेंट चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पर्सन। इसके पीछे हमारा जो कंसेप्ट है वो यही वाला आएगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स व्हिच आर getting activated, and in supine lying position there is a different set of muscles which get go into activation. supine lying में इट इज़ द एब्डोमिनल, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट कि एब्डोमिनल मसल्स अगर मतलब सुपाइन लाइंग पोजीशन में पर्सन अगर ट्रंक फ्लेक्शन करता है, मतलब क्रंचेस वाली पोजीशन, तो उस केस में एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड व्हेन द एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट इन दैट केस पेल्विस गोज इनटू पोस्टीरियर टिल्ट। लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो उस केस में इट इज़ नॉट द एब्डोमिनल्स, इट इज़ द यू कैन से अनदर सेट ऑफ मसल, जो कि हमारा लोअर बैक मसल्स एंड जो हमारा हिप फ्लेक्सर्स है वो वाला सेट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो पेल्विस है वो एंटीरियर टिल्ट में जाता है। इट मीन्स कि हमारा लोअर बैक एंड हिप फ्लेक्सर वाला जो सेट ऑफ मसल्स है, when that set of muscle goes into contraction, in that case it leads to anterior tilt, and abdominal वाला जो मसल अगर when it goes into contraction, in that case pelvis goes into posterior tilt। तो उसकी हम बात करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर इमेज भी आई थिंक मैगी में दिया हुआ है, लेकिन उसको हम प्रॉपरली वी विल टॉक अबाउट दैट मे बी 2 or 3 क्लासेस आफ्टर दिस वन। तो उसमें हम उसकी बात करेंगे एंड देन वी विल सी कि हाउ लंबर पेल्विक मोशन जो है हाउ इट चेंजेस इन डिफरेंट पोजीशंस। लेकिन राइट नाउ वी आर mainly concerned with the muscle activation in like which side muscle and which type of contraction we can talk about in different positions of a person, ठीक है, like standing position में या फिर side lying या supine जो भी है। I hope this thing is clear to everyone। muscle Yes, sir. ठीक है। Yeah. सर एक और बात, हाँ 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 आपने बोला मतलब बस डाउट है ये हाँ, कि अगर हम स्टैंडिंग में हिप बैक एक्सटेंशन करते हैं तो एब्डोमिनल का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा ना? अगर हम स्टैंडिंग में बैक एक्सटेंशन Back करते हैं extension. या फिर बैकवर्ड लीन करते हैं ट्रंक को, हाँ हाँ तो उस केस में देखो ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। आप एक बार स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। एक बार बैकवर्ड ट्रंक लीन करके देखो, एक बार पैल्पेट करो कौन सी साइड की मसल कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, एब्डोमिनल्स की बैक। आई थिंक बैक मसल्स तो स्टिल हम इतना पैल्पेट नहीं कर सकते, बट एब्डोमिनल्स तो हम इजीली वी कैन पैल्पेट ना, बैक मसल। है ना। तो एब्डोमिनल्स को एक बार थोड़ा सा मसल को मतलब थोड़ा प्रेस करके देखो, उसके बाद जस्ट गो इनटू बैकवर्ड टिल्ट, इजीली यू विल सी कि एकदम से फिंगर्स इट विल पॉप आउट। तो इट मीन्स कि मसल्स जो एब्डोमिनल सेट ऑफ मसल्स है दोज मसल्स गो इनटू एक्टिवेशन, ठीक है ठीक है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, है ना, जस्ट आई थिंक इजीली वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द एक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ठीक है, तो I just gave you a glimpse of the type of like how these muscles mainly can show activation, and let's talk about these things. So I think this thing is simple कि first of all we are supposed to talk about the external and the internal oblique। Simply we can see कि देखो जब हम इनकी नर्व सप्लाई की बात करें, इफ़ आई आस्क यू कि आर वी सपोज टू टॉक अबाउट द टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स इफ वी टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स? आई डोंट थिंक। हमने एक स्लाइड में पढ़ा था ना कि टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स एंड एटिपिकल इंटरकॉस्टल। कोई मेरे को बताएगा टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स कहाँ से कहाँ तक थी? T1 to T7. T1 to T6 1 to T6। T6 ना।
So it and why we were calling those as typical intercostal nerves, because they were only supposed to supply the thoracic, Only है ना? supply thoracic wall. Only the thoracic region. But if we see the T7 to T11, है ना, we are not considering T12. T7 to T11 it is supposed to supply, तो उसको हम thoraco abdominal nerves भी इनको हम कहते हैं collectively ना. It means they supply the thoracic as well as the abdominal region. लेकिन if I ask you T12, उसका नाम क्या था? T12 नाम का it was Anterior. subcostal. It was it was subcostal nerve, and subcostal nerve हमारी it was supplying simply the, you can say, the abdominal region and the skin of the buttock and all those, है ना? ठीक है, ओके. तो इसलिए यहाँ पे आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट T1 to T6 एटलीस्ट, जब हम बात कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स. कहीं पे भी हमें T1 to T6 तो सुनने को नहीं मिलेगा, है ना? आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? अगर हम एब्डोमिनल के मसल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम थोरैसिक मसल्स की बात कर रहे होते, थोरैसिक रीजन की बात कर रहे होते, तब हम बात करते हैं T1 to T6 की. ओके, तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि नर्व सप्लाई. एंड अगर हम बात करते हैं अटैचमेंट की, तो जस्ट सिंपली रिमेंबर कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक दोनों के जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, दे रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक की अगर हम बात करते हैं, तो it originates from, you can say, rib number 5 to 12 and then inserts into iliac crest in the pubic tubercle. So we can see we have got the iliac crest and then we have got the pubic tubercles, है ना? तो into this we can say originates from this particular region, and all the fibers going inferior medially, ठीक है? That is the fiber orientation for external oblique. Likewise we can see if we talk about internal oblique, इसका exactly perpendicular, like ऐसे हमें होना चाहिए ना. तो इट मीन्स यहाँ पे वी कैन सी अटैचमेंट इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड देन इंग्वाइनल लिगामेंट कोई मेरे को बताएगा कहाँ से कहाँ प्रेजेंट था? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं इंग्वाइनल लिगामेंट. डोंट से कि आपको नहीं पता, ये हमने फिमोरल ट्रायंगल में भी पढ़ा है इंग्वाइनल लिगामेंट. किसको आइडिया नहीं है इंग्वाइनल लिगामेंट का? हमने यहाँ पे पढ़ा था. एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था, ASI से लेके अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल, एक लिगामेंट की हमने बात करी थी. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो हमने इंग्वाइनल लिगामेंट की यहाँ पे बात करी थी ना, विच वॉज एक्टिंग एज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फॉर द स्ट्रक्चर्स, है ना, विच वेर पासिंग अंडरनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, तो फ्रॉम इंग्वाइनल लिगामेंट, and apart from that we can say the iliac crest and the lumbodorsal fascia, and then inserts into 10th to 12th rib. ठीक है, तो like this, so we can talk about that is the attachment of the internal obliques. ठीक है, okay. And we can say that when there is bilateral contraction, that leads to compression of the abdomen, and or we can say the intra abdominal pressure, it increases, है ना. And if on one side if the muscle goes into contraction, in that case we can say that in case of internal oblique it leads to unilateral contraction, ठीक है, ipsilaterally, and in case of external oblique we can say it leads to contralateral contraction. It means कि अगर the person is in sitting position and the person rotates the torso rotation, मतलब the person is trying to rotate the you can say that the thorax and the abdominal region. In that case, if the person rotates it towards right side, in that case we can say जब राइट साइड की तरफ रोटेट कर रहा है, उस टाइम पे वी कैन से there is contralateral contraction of the external oblique and same side contraction of the internal oblique. ठीक है, जब पर्सन राइट साइड की तरफ जब करता है टॉर्सो रोटेशन, तो इन दैट केस अपोजिट साइड का एक्सटर्नल ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड सेम साइड का इंटरनल ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. जस्ट रिमेंबर इट सिंपली लाइक दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ठीक है सर, आपका वॉइस ब्रेक अगेन ब्रेक हो रही है. ओके, जस्ट लेट मी. नो सर. हाँ, Sir, no. नहीं हो रही तो फिर नो सर. ओके, अगर नहीं हो रही तो आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो. अगर स्टिल रहता है तो फिर जस्ट फिर मैं कुछ करता हूँ. ठीक है, ओके, ठीक है. तो ओके, नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को हम दूसरा नाम वी कैन गिव इट एज कॉर्सेट मसल, है ना.
इसको हम इसको वी कैन कॉल इट एज कॉर्सेट मसल. किसी को पता है कॉर्सेट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? जैसे आपने देखा होगा हाँ पार्ट ऑफ ड्रेसिंग होता है. हाँ पार्ट ऑफ ड्रेसिंग होता है ना, जब आई थिंक आई डोंट नो अभी के टाइम पे है कि नहीं, बट इन द अर्लियर टाइम स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन से दैट द लेडीज दे यूज्ड टू वेयर दिस थिंग ना, a part of dress है ना, that used to be something like this only. तो ना and that we can say help to maintain a particular shape of the body. So likewise we can say we have got the transverse abdominis which helps to maintain a particular shape of the abdominal region, and that is that, and we can call, like because of that we can call it as a corset muscle also. ठीक है, इसको हम corset muscle भी कह रहे हैं. Same we can say that see that 7 to 11 apart from that T12. ठीक है, T7 to T11 and T12. ठीक है, nerve supply. And we can say that the contraction compresses the abdominal content, and apart from that the contraction of this particular muscle is mainly responsible for maintaining the stability of the you can say the lower vertebral column as a whole. तो इसलिए we are supposed to talk about this particular muscle when we say that किसी person में अगर low back pain है, ठीक है, और you can say the stability is compromised. In that case we are supposed to talk about the transverse abdominis. Okay. Then we have got the vertical muscles, flat muscles हमने देख लिया. We have got the transverse abdominis and the external and the internal obliques. Vertical muscles में सबसे पहले we have got the rectus abdominis. Here we can see rectus abdominis attachment. We can say that from the pubic crest up to you can say the rib number 5 to 7. ठीक है, and inserting into xiphoid process and all those structures. ठीक है, we can say the fibers are running vertically. That's why we call it as vertical fibers. Likewise, this is one of the most, you can say, not most important, but one of the important muscles that is called as pyramidalis. Pyramidalis, we can see a simple small muscle, and this tendon, this structure is called as linea alba. ठीक है, this central structure, यहाँ पे आपने देखा होगा हर जगह पे ये structure present है. From the pubic symphysis up to you can say the xiphoid process, we have got this structure that is called as linea alba, and the contraction of the pyramidalis, it simply increases the tension in the linea alba. ठीक है, that is simply the function of the pyramidalis. ठीक है, nothing else. It acts to tense the linea alba, and simply by T12 nerve. Innervation is T12, that is subcostal nerve. ठीक है, likewise posterior muscles में we have seen the quadratus lumborum, simply quadratus QL है ना. हमने देख लिया कि iliac crest से transverse process and up to you can say the inferior part of the rib. सोआस मेजर एंड माइनर की हमने बात कर ली थी आई थिंक पहले, है ना. सोआस माइनर अब देख रहे होगे, दिस इज द इनग्वाइनल लिगामेंट ना, जो ऊपर लिखा हुआ था इनग्वाइनल. तो वी कैन सी दैट फ्रॉम T12L1 अप टू इनग्वाइनल लिगामेंट हमारा सोआस माइनर का अटैचमेंट होता है. बट वी कैन सी सोआस मेजर एंड इलियकस बोथ हैव देयर इंसर्शन इनटू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, है ना. कैन एनीवन टेल मी कि सोआस ये इलियकस मसल इज प्रेजेंट ऑन विच सरफेस ऑफ इलियम? इलियम के कौन सी सरफेस पे is the iliacus muscle present? इलियम के हमारे 3 सरफेस है ना, ग्लूटेल सरफेस, इलियक सरफेस एंड कौन सा था, सैक्रोपेल्विक सरफेस. 3 सरफेस थे. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो आई थिंक इस टाइम पे क्लास लेने में आई थिंक इट इज़ बिकमिंग अ बिट आई थिंक बोरिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज इस टाइम पे सब एग्जॉस्ट है एंड मे बी इस वजह से शायद सब रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से. आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है सबको जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? आई यू गाइस इवन लिसनिंग और नॉट? मतलब मुझे नहीं पता. तो जस्ट गिव मी अ फीडबैक अगर आप सुन रहे हो, जस्ट लेट मी नो. ओके, यस सर. ठीक है, yes sir. ओके ओके ग्रेट. ठीक है, तो इट इज द iliac सरफेस, है ना. एंड देयर वाज अ लाइन which was dividing the iliac surface and the sacropelvic surface, that was called as the arcuate line ना, और the iliopubic eminence, है ना, या फिर arcuate line उसको हम कह रहे थे. ये हम बात कर रहे हैं मीडियल साइड ऑफ इलियम की. उसके अलावा लेटरल साइड ऑफ इलियम पे हमारे पास ग्लूटियल सरफेस था ना, जहाँ पे हमारे ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस का अटैचमेंट था. ओके, ठीक है, ओके. and ठीक है, हमारा psoas major simply these all are we can say the hip flexor muscles,
एंड वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस मसल्स आगे जब हम बात करेंगे लंबर पेल्विक मोशन वहाँ पे मसल्स का काम बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन अभी हम सिंपली वी कैन सी द जस्ट की the attachment of these particular muscles. Likewise we can see the iliacus also present on the iliac fossa and gets inserted into the lesser trochanter. Here we can see here the diaphragm. The diaphragm is I think we have talked about the nerve supply of diaphragm. Can anyone tell me the nerve supply of diaphragm? Phrenic nerve. It is phrenic nerve. Nerve root is yeah, phrenic nerve C3 to C5. C3 C4 C5 है ना. एंड वी कैन सी ओके तो हे वी गॉट सेंट्रल टेंडन. देखो सेंटर में अगर हम देखें यहाँ पे ऑफ कोर्स एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है एंड वी हैव गॉट अ सेंट्रल टेंडन. सेंटर में कहीं प्रेजेंट होता है वहाँ से हम देखते हैं ऑल द फाइबर्स दे ओरिजिनेट एंड इवेंचुअली दे गो डाउनवर्ड्स है ना. तो anteriorly we can see up to the xiphoid process. Laterally we can see they go all the way up to 11th and 12th ribs, and posteriorly we can see all the fibers they are going downwards up to L1 L2. ठीक है, L1 L2 तक इवन यू कैन से देखो ये L1 है, L2 तक हमारे जो फाइबर्स के जो टेंडन्स हैं वो जा रहे हैं. ठीक है, posteriorly. Laterally of course they will go up to 12th rib and anteriorly up to xiphoid process. ठीक है, all the fibers going downwards. And we have got a central tendon and that is the structure of the diaphragm. And we know the nerve supply, and also we can say that diaphragm is a skeletal muscle, and it is the major muscle for ventilation, है ना, the diaphragm. Okay, and during ventilation जब inspiration हम करते हैं diaphragm moves in which direction, downwards or upwards? upwards. No. During डाउनवर्ड हाँ Downwards से downwards. Downward. इन करते तो डाउनवर्ड, हाँ है ना, मतलब जब हम ब्रीथ इन करते तो डाउनवर्ड. जब इंस्पायरेशन या जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उस टाइम पे वी वांट दिस वॉल्यूम टू इंक्रीज, है ना, thoracic volume we want to increase, and in that case contraction of diaphragm will lead to a downward descent of diaphragm. Because of that we can say कि it will increase a pressure on the abdominal viscera ना, abdominal region के ऊपर, abdominal cavity के ऊपर it will increase the pressure, है ना. ठीक है, and ठीक है, and because of that we can say that as a whole the volume increases. ठीक है, okay. अब यहाँ पे एक फंक्शन और होता है, I think we will talk about this in biomechanics only, that मैंने एक टर्म यूज़ किया था compliance. किसी को ध्यान में शायद मैंने बात कर रही थी compliance की, नहीं कर रही थी एक बार शायद आई थिंक करी थी, Yes, sir. है ना. compliance it is an ability of a structure to you can say undergo certain sort of distortion, है ना. एक structure कितना distortion सह सकता है ना, and then it can recover maybe its shape. Then we call that property of that substance as compliance. तो here we can see हमारा abdominal cavity यहाँ पे present है, तो we can say it is the compliance of the abdominal cavity, है ना. तो when person is inhalation के टाइम पे there is the contraction of diaphragm, and because of that diaphragm moves downwards जब move कर रहा है तो it increases the pressure on the abdominal cavity. Now of course we can say that the abdominal cavity is compliant, and because of that it will again जो distortion हमारा abdominal cavity के ऊपर आ रहा है it is trying to now go against that force, because diaphragm का तो force downwards है ना. एंड अब हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है वो फोर्स पुट करेगा अपवर्ड्स, बिकॉज हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है दैट इज कंप्लायंट, है ना. इट विल अंडरगो डिस्टॉर्शन बट इट विल अगेन ट्राई टू रिटेन इट्स शेप. तो बिकॉज ऑफ दैट अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का फोर्स नीचे लग रहा है एब्डोमिन पे, एंड एब्डोमिनल का जो कंप्लायंस है उसकी वजह से जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है वापस डायफ्राम पे. तो डोंट यू थिंक इवेंचुअली हमारा जो लोअर सेगमेंट ऑफ जो रिब केज है इट शुड मूव लैटरली आउटवर्ड्स, ये होगा. ठीक है, आप अगर एक फोर्स डायफ्राम का डाउनवर्ड लगाते हो एंड उसके रिस्पॉन्स में एक एब्डोमेन का फोर्स ने अपवर्ड लगाते हो, तो उस केस में विल सी इवेंचुअली अब वो फोर्स कहीं ना कहीं तो डिसिपेट होना चाहिए ना. तो वी विल सी कि ठीक है हमारा जो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है कॉर्डल फोर्स है एंड एक क्रेनियली डायरेक्टेड फोर्स है. तो बिकॉज ऑफ दैट वी विल सी अ रिजल्टेंट, एंड दैट विल लीड टू the outward movement of lower segment of the thorax or the rib cage. ठीक है, and because of that eventually further we can say that हमारा जो volume of the rib cage जो है that will increase. ठीक है, तो it is the compliance of the abdominal cavity
because of which it tries to put a backward force on the diaphragm, because diaphragm was also putting a force on the abdominal cavity because of its contraction, and eventually we see because of that eventually we see the lower segment of the rib cage moving outwards, ठीक है. And eventually we see कि हमारा जो lower segment of because of that overall जो volume है it increases. Okay. तो let's say हमारा डायफ्राम अगर डायफ्राम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स इट वोंट बी एबल टू पुट दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द एब्डोमिनल कैविटी. अगर उतना फोर्स आ ही नहीं रहा एब्डोमिनल कैविटी पे, तो फॉर श्योर एब्डोमिनल कैविटी वापस उतना फोर्स वापस ऊपर की तरफ नहीं लगाएगा. एंड इवेंचुअली वी विल सी कि लोअर सेगमेंट जो है ऑफ द रिब केज दैट वोंट बी एबल टू ओपन अप दैट मच, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज अ होल विल सी द वेंटिलेशन ऑफ द पर्सन विल गेट अफेक्टेड. ठीक है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन से अगर डायफ्राम अगर अफेक्टेड है, लेट्स से डायफ्राम अगर अफेक्टेड है, तो नॉर्मली वी सी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इवेंचुअली लीड्स टू ओपनिंग अप ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द रिब केज. बट अगर डायफ्राम हमारा अफेक्टेड है, तो ओपनिंग अप ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ रिब केज तो छोड़ दो, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करेगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द रिब केज. हाउ? because the slight amount of थोड़ा सा जो contraction होगा, slight contraction in the fibers of the diaphragm, it will eventually lead to inward movement of the lower segment. I hope सबको ये चीज़ समझ आ रही है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा. मतलब आप जस्ट ऐसे लेके चलो कि जो हमारा डायफ्राम है ना, ठीक है, डायफ्राम हमारा जो है डायफ्राम अफेक्टेड है, there is a slight amount of you can say contraction still left in the diaphragm, and because of that डायफ्राम हमारा sufficient force या compression तो नहीं डाल पा रहा on the abdomen, जिसकी वजह से हमारा लोअर सेगमेंट ऑफ रिब केज ओपन अप हो रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम में, तो इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द रिब केज, ये उल्टा उसको अंदर की तरफ पुल करेगा. ठीक है. एंड दैट विल इवेंचुअली डिक्रीज द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द रिब केज. ठीक है. तो ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन. तो बट वी कैन सी दैट डायफ्राम इज कितना इमेंसली इंपॉर्टेंट मसल है व्हेन इट कम्स टू वेंटिलेशन. ठीक है. एंड कैन एनीवन टेल मी दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डायफ्राम्स को हम क्या बोलते हैं? जो सेगमेंट ऑफ डायफ्राम दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिब्स, इसको किसी को ध्यान में है? ये कॉल इट एज कोस्टल. नहीं, ओके फाइबर्स की बात करो, क्रूरल फाइबर्स, कोस्टल फाइबर्स. रिसेस. नहीं रिसेस नहीं, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एपोजिशन. इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज जोन ऑफ एपोजिशन. ठीक है. जोन ऑफ एपोजिशन. ठीक है. दिस एपोजिशन वर्ड का मतलब है इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग एल्स. ठीक है. इट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वी कैन सी that diaphragm is in contact with the ribs, and we can say that's why this particular region is called as the zone of apposition of the diaphragm. ठीक है. Okay. And by the end I hope we are done with these muscles at least, है ना. मैंने थोड़ा superficially इन muscles को cover किया है. इनके functions को हम properly we are going to discuss this in detail in biomechanics. ठीक है. हम लंबा pelvic motion में इन्हीं muscles के बारे में बात कर रहे होंगे, and ऑफ कोर्स वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे बायोमैकेनिक्स. एंड डायफ्राम को थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट वी नीड टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड एज राइट psoas साइन. ये चीज़ राइट psoas साइन. राइट psoas साइन सिंपली मीन्स we can say that right psoas sign is an indication of appendicitis. Appendicitis means we have got a vestigial organ that is called as vermiform appendix, है ना. vermiform appendix present होता है, and so we can say it is a vestigial organ, and sometimes we can say that it might be inflammation of this structure, है ना, and which is of highest medical emergency, and जहाँ पे ना the person needs to get this particular structure removed surgically as soon as possible. So we can say that is appendicitis, and we can say in the beginning of the appendicitis, ठीक है, or we can say the person might complain of a pain on the right side when the person you can say leans towards front side. मतलब the person front lean कर रहा है, या फिर let's say the person is trying to bring right hip joint into flexion, तो उस केस में when there is contraction of the right psoas muscles, so in that case we can say the person might complain of pain. तो उसको that's why we say कि that is called as right psoas sign, and that might be an that might be, you can say this thing, an indication of appendicitis. ठीक है. that person might
have appendicitis maybe in some period of time. ठीक है, that is right psoas sign. ठीक है, I think we are clear with this thing. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर हाँ आपने बोला कि एब्डोमिनल कैविटी का कंप्लायंस, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या रिएक्ट करता है? लाइक कैविटी है तो वो तो खाली स्पेस है ना, तो इज इट द मसल और द ऑर्गन्स? एब्डोमिनल कैविटी में हाँ नहीं एब्डोम मतलब हाँ मतलब आपने बोला ना, लाइक जब डायफ्राम हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर जाता है एब्डोमेन पे, हाँ एब्डोमिनल कैविटी पे। हाँ उसके बाद वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका स्पेस कम होता है तो वो रिएक्ट करके फिर उसके बाद उसकी वजह से रिब्स का लेटरल साइड एक्सपैंड होता है। हाँ, तो जैसे कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है एब्डोमेन का जो कि हाँ ओके, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर्स, मतलब यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मसल्स एज वेल एज बिकॉज वी कैन से कि मतलब एज अ होल हमारे पूरा मेनली दीज आर द मसल्स एंड pressure being increased on the viscera as well, so eventually we can say more or less these are the muscles only, and as a combination of all the structures we can say कि जो वापस जो फोर्स आता है upwards, मतलब combination of all the structures है, मतलब as a whole we can say it is the abdominal viscera or abdominal cavity as a whole. ठीक है, mainly the muscles, mainly these are the muscles only. Okay. Okay, so let me know कि that if we are clear till this particular slide यहाँ तक. ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? Okay, just let me close it and okay, so let's now we are done with the anatomy part, and let's now start with biomechanics. I would say one of the most interesting thing that that we are going to come across, and we are going to start with the vertebral column and then we will proceed further. Okay, so talking about the vertebral column, before going further, can anyone tell me anything about vertebral column as a whole? कितने segment होते हैं vertebral column में, कौन से vertebrae present होते हैं, anything? कितने intervertebral disc? 33 वर्टिब्रा होती है। Okay. सर्वाइकल 7, थोरैक्स 12, lumbar 5, sacral 5, coccyx 1. हाँ, okay. And उससे 10 कम कर दो, that is the number of you can say intervertebral disc. Okay. Okay, so here we can see, okay, ठीक है, हमने बात कर ली, and apart from that इसके अलावा और कुछ in vertebral column में और क्या है? Curvatures है? हाँ Size will increase when we go down from C7 to L5. The size and when we go down from S5 to coccyx region, size will decrease of vertebra. Okay, as a whole you can say the size of the vertebral body will increase. ठीक है, and you can say the size From of the C7 intervertebral, to L5. exactly, the size of the intervertebral disc will also increase eventually. Okay, and any something about the curvature, vertebral column curvatures, the normal and the abnormal curvatures. Two curves होते हैं, हाँ, kyphosis and lordosis. okay. In cervical region, Okay. there is lordotic curve is normal. Then in thoracic there is kyphotic is normal, and in lumbar there is lordotic curve is normal. Okay, ठीक है, okay, great. Assignment हाँ. for spine more than 10 degree will be scoliosis. More than 10 degree, 10 degree of what? Like कोई angle up 15 angle, degree Cobb's angle ना? 10 to हाँ, Cobb's angle, okay, great. Cobb's angle. And Cobb's क्या angle. क्या हम Cobb's angle सिर्फ lateral curvature, abnormal lateral curvature के लिए use कर सकते हैं, और can we use Cobb's angle for other curvatures as well? We can use Cobb's angle for measuring cervical as well as the thoracic, है ना? ठीक है, but of course अगर हम बात करते हैं Cobb's angle की in terms of lateral curvature, तो in that case कोई बताएगा कि कौन से plane के along हमारा Cobb's angle बनेगा? अगर हम lateral curvature की बात कर रहे हैं and we are talking about the Cobb's angle, तो in that case the angle should be along which plane?
ट्रांसफर्स नो 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 sagittal plane. नहीं 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 देखो मैं बात कर रहा हूँ लैटरल कर्वेचर। लैटरल कर्वेचर मीन्स स्कोलियोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। स्कोलियोसिस का अगर आपके पास एक एक्सरे आता है, पॉस्टीरियो एंटीरियर पीए एक्सरे अगर आपके पास है, तो उस केस में आप एक्सरे के ऊपर बनाते हो ना कॉब्स एंगल, एंड उसके बाद तो ये हमारा एक्सरे जो है पीए व्यू जो है पी पॉस्टीरियो एंटीरियर व्यू हमारा कौन सा प्लेन के अलोंग है? आई थिंक ये फ्रंटल प्लेन के अलोंग नहीं है, कॉर्नल प्लेन। सब एक बार अब करके देखो, फ्रंटल प्लेन के अलोंग होगा ना कि नहीं? किसी को यस सर। ओके देखो आई एम टॉकिंग अबाउट लैटरल कर्वेचर। तो लैटरल कर्वेचर अगर अगर मेरा कर्वेचर मान लो इस तरह से है, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कितना है हॉब्स एंगल, तो उस केस में जो व्यू होगा वो हमारा मतलब जो हम एंगल बनाएंगे दैट विल बी अलोंग दिस पर्टिकुलर प्लेन ना, दैट विल बी इसी प्लेन में तो मैं एंगल बनाऊंगा ना, इस प्लेन में दैट विल बी द फ्रंटल प्लेन है ना, हमारा कॉर्नल प्लेन। लेकिन अगर मुझे सर्वाइकल एंड थोरासिक कर्वेचर्स का अगर मुझे देखना है, तो उस केस में मुझे पर्सन को लैटरल साइड से देखना पड़ेगा, है ना। तो लैटरल व्यू से फिर मैं देख सकता हूँ कि तो उस केस में हम कह सकते हैं कि थोरासिक एंड सर्वाइकल कर्वेचर्स के लिए वी कैन टॉक अबाउट द सजाइटल प्लेन के सजाइटल प्लेन के अलोंग वीकेंड में इसको आई थिंक थोड़ा सा और क्लियर हम यहाँ से करते हैं। देखो अगर हम सर्वाइकल एंड थोरासिक मतलब इन कर्वेचर्स की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इस केस में हमें अगर एक्सरे लेना है तो हम एक तो लैटरल व्यू वाला एक्सरे लेंगे, इसमें किसी को डाउट है? हम लैटरल व्यू से तो एक्सरे लेंगे ना, तभी तो हम है ना मेजर। आई थिंक अगर आप पॉस्टीरियरली लेते हो एक्सरे, उस केस में क्या यहाँ पे हम सर्वाइकल एंड थोरैसिक कर्वेचर्स की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हमें तो लैटरल व्यू लेना पड़ेगा ना इसके लिए। तो लैटर अब यहाँ पे मैं बना सकता हूँ कॉब्स एंगल की, मान लो अब ये थोरैसिक काइफोसिस है, तो थोरैसिक काइफोसिस के लिए अब मैं है ना एंगल बना सकता हूँ। तो ये एंगल जो बन रहा है लैटरल व्यू से, तो ये एंगल कौन से प्लेन के अलोंग बन रहा है? सजाइटल प्लेन ना। आई होप सबको समझ आ रहा है। सजाइटल प्लेन है कि नहीं? एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लेन, दैट इज सजाइटल प्लेन। इसी प्लेन में तो मैं बना रहा हूँ ना लैटरल व्यू। बट अगर मैं स्कोलियोसिस की मैं बात करता हूँ, तो स्कोलियोसिस के केस में अगर मैं कॉब्स एंगल बनाता हूँ, तो कॉब्स एंगल अब मेरा ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज फ्रंटल प्लेन। आई होप सबको चीज़ समझ आ रही है। मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है इस चीज़ में सबसे कोई कंफ्यूजन? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। तो ओके इतना हमें समझ आ गया। इसके अलावा चलो ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर ले। तो हमने इसकी बात कर ली कि वी हैव गॉट 33 वर्टिब्रे। इसके अलावा इसमें से 10 अगर हम कम कर देते हैं, तो वी हैव गॉट 23 इंटरवर्टिबल डिस्क। इसमें चलो इसकी हम बात करते हैं। अगर 23 इंटरवर्टिबल डिस्क है हमारे पास, हमारे पास C1 C2 के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है कि नहीं होती? बिटवीन C1 एंड C2 नहीं होती ना, बिकॉज है ना, बिकॉज C2 के पास एक स्ट्रक्चर होता है, C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास में ओडोंटॉइड प्रोसेस है ना, जिसको हम डेंस भी बोलते हैं ना। तो समथिंग लाइक दिस लाइक स्ट्रक्चर। तो अब ऑफ कोर्स एंड दैट डेंस इट गोज थ्रू द रिंग ऑफ C1 है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि C1 C2 के बीच में तो कोई नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर हम फर्स्ट सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क की बात करना चाह रहे हैं, फर्स्ट सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क, तो इट इज सपोज टू बी बिटवीन C2 एंड C3 है ना। C2 C3 के बीच में हमारा फर्स्ट सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क होगा, एंड लास्ट सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क कहाँ होगा? C7 एंड T1 के बीच में। तभी तो हमारे 6 सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क निकल के आएंगे ना। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल है ना इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन C2 C3, नॉट बिटवीन C1 C2, एंड लास्ट 6 सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन C7 एंड T1। अब फर्स्ट थोरैसिक इंटरवर्टिबल डिस्क इज बिटवीन T1 एंड T2, ठीक है, एंड लास्ट थोरैसिक 12th थोरैसिक इंटरवर्टिबल डिस्क इज बिटवीन T12 एंड L1। लाइकवाइज लास्ट लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन L5 S1, ठीक है, एंड फर्स्ट लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क बिटवीन L1 L2। आई होप एवरीवन गॉट एन आइडिया। ठीक है, तभी ठीक है, ओके एंड ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा
तो ओके, तो इससे हमें पता चल गया वी हैव गॉट 6 सर्वाइकल एंड देन वी हैव गॉट 12 thoracic एंड 5 लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क. ओके, अब यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ यू टॉक अबाउट द इन्फेंट, तो हियर वी कैन सी इन एन इन्फेंट वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड एज सी शेप्ड कर्वेचर, सी टाइप कर्वेचर. तो सी कर्वेचर में हम देख सकते हैं इट इज कॉन्वेक्स. कहाँ से कॉन्वेक्स होगा? इज इट कॉन्वेक्स एंटीरियरली और पोस्टीरियरली? दिस कर्वेचर posteriorly. कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली एंड कॉनकेव एंटीरियरली, है ना. कॉनकेव है ना, केव इज बीइंग फॉर्म्ड एंटीरियरली, तो कॉनकेव एंटीरियरली, कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली. दैट्स व्हाई इस कर्वेचर को भी कॉल इट एज प्राइमरी कर्वेचर. तो अब अगर हम एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम में बात करें तो वी कैन से दैट द थोरैसिक, कितने कितने हमारे पास प्राइमरी कर्वेचर प्रेजेंट है? फर्स्ट वन इज इन थोरैसिक एंड अनदर वन, है ना, इज इन द सैक्रल, है ना, जो विच इज कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली एंड कॉनकेव एंटीरियरली, है ना. तो थोरैसिक एज वेल एज सैक्रल, है ना, टू प्राइमरी कर्वेचर्स. एंड इसके अलावा हम क्या देखते हैं? व्हेन द इन्फेंट स्टार्ट्स मेंटेनिंग हेड कंट्रोल, है ना, एंड ट्रंक कंट्रोल, उसके बाद हम देखते हैं देयर इज यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ, यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ lumbar curvature, or you can say the curvature which is posteriorly concave and anteriorly convex. And because of that we see these type of curvature जो कि हमें cervical and lumbar spine में देखने को मिलता है. That's why we call these curvatures as secondary curvatures. So we have got 2 primary curvatures and 2 secondary curvatures, and of course these curvatures, these normal curvatures are present. We can have a view from lateral side, है ना. लेकिन अगर हम posterior व्यू की बात करते हैं, एंटीरियर व्यू से की बात करते हैं, फ्रॉम दिस साइड वी कांट टॉक अबाउट लैटरल अबाउट दिस कर्वेचर्स. यहाँ पे सिर्फ हम बात कर सकते हैं लैटरल कर्वेचर की, है ना, स्कोलियोसिस की सिर्फ हम बात कर सकते हैं अगर हम posterior एंटीरियर व्यू की अगर हम बात करते हैं. ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस. सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. सर्वाइकल कर्वेचर्स, सर्वाइकल एंड लंबर कर्वेचर जो कि प्राइमरी कर्वेचर है. वी गॉट सेकेंडरी कर्वेचर जो कि यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी कर्वेचर, लॉर्डोटिक कर्वेचर, एंड प्राइमरी कर्वेचर इज काइफोटिक कर्वेचर. ओके, and the thing is that if you talk about vertebral column, it is in closed chain. Of course कोई मेरे को बताएगा closed chain का मतलब क्या होता है? What is a closed chain movement and what is open chain movement? Closed chain में distal end fix होता है, open chain में distal end movable. हाँ, मतलब कोई भी एक एंड हो सकता है. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिस्टल एंड ही हो, कोई भी एक साइड से अगर वो इफ इट इज़ फ्री टू मूव, तो देन वी कैन से दैट इट इज़ एन ओपन चेन मूवमेंट. तो क्या अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, इज इट फ्री टू मूव फ्रॉम एनी साइड? प्रॉक्सिमली इट इज़ अटैच्ड टू द स्कल एंड डिस्टली इट इज़ अटैच्ड टू द pelvis. So it is not free to move. It is we can say the movements in the vertebral column are being affected either by the movement of the skull or by the movement of the pelvis. So we can say it is in a closed chain movement, है ना, closed chain में है ये, ठीक है. And it is bound to go into certain kind of movements because of certain changes in the position of the skull, or you can say the pelvis. Okay. Just let me know, यहाँ तक clear हुआ? यहाँ तक is it clear for everyone? Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Yes, sir. Okay. Primary and secondary curvature. Second curvature. किसी को कोई डाउट है? ओके, let's do this कि इसको ना इस वर्टिब्रल कॉलम को let's talk about this tomorrow. ओके, ऐसा करते हैं, कल से क्लासेस नॉर्मली अपने टाइम पे होगी मॉर्निंग में, एंड सिर्फ 25th को आई वोंट बी एबल टू टेक अ क्लास. ठीक है. हाँ, Hello. हाँ. Sir, can you explain again the primary and secondary curvatures? And Okay. sir, that you told about the kyphotic and lordotic curves. Simply we can say कि primary, why we are calling certain type of curvature as a primary curvature, because that curvature we can see for the first time in an infant, है ना. तो first time जो curvature form होता है, that is convex. It is convex posteriorly and concave anteriorly, and that's why we call this type of curvature as the primary curvature, which is convex posteriorly and concave anteriorly, and that's why we call we call this type of curvature as kyphotic curvature, na, which is concave anteriorly and convex posteriorly. That's why we say that the kyphotic curvatures of the thoracic as well as the sacral spine are
are the primary curvatures, and opposite to that, which is concave posteriorly and convex anteriorly, we say that those are the secondary curvatures, because they arrive later on, है ना? In the beginning, these curvatures, these secondary curvatures are not present, but they appear later on, है ना? That's why we are calling these as the secondary curvatures. Okay. ठीक है कुंजल, आई थिंक आप यही पूछ रहे थे, इसके अलावा ठीक है, ओके। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्टिब्रा इन टुमारोज क्लास। ओनली ऑन 25th आई वोंट बी एबल टू टेक अ क्लास। 25th की वी विल रीशेड्यूल इट ऑन संडे, ठीक है? संडे को हम क्लास ले लेंगे, तो आप जस्ट वी कैन डू दिस दैट कि आई थिंक इट्स सैटरडे ऑन 25th ना, तो 26th को वी विल हैव अ क्लास, एंड 25th को आई होप नोबडी हैज़ अ प्रॉब्लम टेकिंग अ क्लास ऑन संडे। संडे को आई थिंक एवरीवन इज फ्री, ठीक है? तो वी विल टेक इट ऑन संडे, एंड 25th को आई वोंट बी एबल टू टेक इट, ठीक है? बाकी फिर अब बाकी जो क्लासेस है इट विल बी इन द मॉर्निंग ओनली, ठीक है? एंड आई थिंक सर हाँ, Sir, Sunday को भी if you take class in morning only, that will be fine. संडे को इन द मॉर्निंग, Yes, sir. हाँ हाँ, आई विल टेक इट इन द मॉर्निंग ओनली। अब सारी क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी। एक्चुअली आई हैड टू गो सम, आई एम आल्सो स्टक इन सम वर्क, तो इसकी वजह से आई हैड टू गो समवेयर टुडे, तो दैट्स व्हाई 25th को भी मेरे को जाना है, दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू टेक द क्लास इन द मॉर्निंग। तो लेकिन अब क्लासेस जो होगी इट विल बी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, ठीक है? अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज इसमें फिर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन इसमें फिर थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नगेट्स है, इसलिए थोड़ा इसको, हाँ आप कुछ बोल रहे हो? सर वर्टिब्रा है कहाँ पर? क्या कह रहे हो? सॉरी, मतलब, आप अपना नाम बताओगे? कौन सी आपका रियल नाम नहीं लिखा, तो सॉरी, मैं आपको आपका नाम मेरे को ध्यान में नहीं। सारिका। सारिका, अच्छा हाँ सारिका, हाँ आप क्या बोल रहे हो सारिका? सर ये है कहाँ पर स्लाइड में? क्या मतलब जो आपने पीडीएफ भेजा है ना, उसमें कहाँ पर है? पीडीएफ क्लास में तो शायद मेरे इसमें जो भेजा है वो शायद एब्डोमिनल पे खत्म हो चुका है। नहीं, ये मैंने आई डोंट नो। दिस हैज स्टार्टेड विद बायोमैकेनिक्स, ये दूसरे वाली पीडीएफ है, ओके ठीक है? ये दूसरी वाली पीडीएफ में है, उसकी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, फिर लेट्स वाइंड इट अप हियर ओनली, एंड फिर tomorrow morning at 7 we'll meet, and I think I'm trying to stretch it a lot, but थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा, एंड ठीक है? फिर कल मॉर्निंग में we will try to cover it up completely, ठीक है? this particular side we'll try to complete it. Okay, so thank you everyone, good night. Thank you, Good night sir. everyone, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.